Okay, let's begin. Gordon, we, Childe, please write. See, the concept is similar. He was also a universal evolutionist, like Leslie White. And the structure is also somewhat similar. इनका भी जो कहना था वो almost similar है. The only difference is Leslie White was focusing on the energy and technology, and he was focusing on the ability to exploit the natural resources. ठीक है. And one thing is, this person is a trained archaeologist. इन्होंने क्या किया है, whatever the theory that he has proposed, he substantiated it with the archaeological data. So थोड़ा सा ज़्यादा backing मिला है इसको. Please write. इस पे लिख लीजिए. Childe was trained archaeologist, was a trained archaeologist and he describes evolution of culture. He describes evolution of culture in his famous book Social Evolution. Social Evolution 1951 में पब्लिश हुआ है. इसमें इन्होंने ये स्कीम डिस्क्राइब किया है. See, he says that कि man is the maker of himself. ठीक है. So because of whatever the archaeological data that he has covered, the archaeological findings, the development, stone tools कैसे evolve होते आ रहे हैं, technological innovation कैसे बढ़ते आ रहे हैं, and using that how the person is able to he was able to get or exploit the natural resources. देखो एक छोटा सा example देता हूँ यहाँ पर. See, earlier man was a scavenger. ठीक है. He was scavenging the dead carcasses and all. So when man was a scavenger and he was not well established, क्योंकि इनका टेक्नोलॉजी इनका इतना नहीं है, he was not a like as predator as now. In those times he was more of a prey. There are so many predators who would just eat him for lunch. ठीक है, ऐसे टाइम पे है. Now when he was a scavenger, he has to wait that a particular predator kills any particular prey, an animal, and it eats, it fills its belly and it leaves that dead carcasses. उसके बाद जो scavengers जैसे vultures हो गया या hyenas हो गया, ये सारे scavengers आएंगे, and which are bit like they can be scared of, they can, from there he can get the meat. So in those times, suppose if he is getting meat by scaring of these scavengers, he himself is scavenging, but sometimes ऐसे होता है कि by the time man reaches the dead carcasses of the animal, the meat is already exhausted, meat है ही नहीं, so he has to return empty handed. There is no meat on, only bones are left. So that means he was not able to exploit the natural resources. Then initially, slowly he started making the stone tools. With the help of the stone tools, he was able to crack open the bone. Even though meat is eaten by the animals, dead carcass से scavengers जो है वो meat को खा गया, but bones are present, and within the core of the bone there is bone marrow which is inaccessible to other animals. But since the man has developed the ability to make the tool, and with that tool he was able to crack open that bone, that means he is getting the resources, he is able to exploit that natural resource which is inaccessible to him until he found that way, until he found how to open that bone. So देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, by the way of this innovation, bringing these stone tools, he was able to exploit the natural resource. So that's how that is the initial revolution. And in this manner, as the man started exploiting more and more resources, what happened, the
ability and the production and surplus of food energy that he is going to have has increased, and this ability to exploit the natural resources as it progressed, that has resulted in the cultural evolution. That is what चिल्डे सेस. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के साथ आप चाहे तो लिंक कर सकते हो. प्लीज, आपने क्या लिखा है? ही वॉज ए ट्रेन्ड आर्कियोलॉजिस्ट. ही एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन द बुक कॉल्ड सोशल एवोल्यूशन. प्लीज राइट. ही वॉज ए यूनिवर्सल एवोल्यूशनिस्ट. Universal evolutionist who described cultural evolution on three lines. See, three major events या three major मतलब 3 मेजर इवेंट्स पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है. व्हाट आर दोज? सबसे फर्स्ट है इन्वेंशन. जैसे मतलब किस तरीके से ही वॉज एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस. इसको कैसे बोल रहा है? इन्वेंशन ऑफ फूड प्रोडक्शन. जैसे इससे पहले ही वॉज फूड गैदरर, ही वॉज मोर लाइक गैदरर. नाउ ही नो हाउ टू प्रोड्यूस. So invention of food production, this is one major event in the evolution of human. Second major event जो है, this is industrialization. ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह ग्रो हुआ है. ठीक है, जिसके वजह से और नेचुरल रिसोर्सेस को ये एक्सप्लॉइट कर पाया है. वी वर एबल टू टर्न स्टोन इनटू आयरन. जो आयरन का मिनरल है वहां से हम आयरन बना रहे हैं, मेटल बना रहे हैं. ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट अर्बनाइजेशन हैज हैपेंड, एंड अर्बनाइजेशन आल्सो अनलॉक्ड सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेस. इस 3 मेजर इवेंट्स के साथ 1 2 3 मेजर इवेंट्स को हाईलाइट करता है इन दी ह्यूमन एवोल्यूशन. प्लीज राइट. 3 मेजर इवेंट्स करके ये तीनों लिख लो. इन्वेंशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए. अकॉर्डिंग टू हिम एट ईच स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, कल्चरल एवोल्यूशन, man was able to develop technological skill, able to develop technological skill to exploit natural resources, नेक्स्ट में लिख लीजिए. he substantiated this with archaeological data. he was an archaeologist, इसलिए substantiated with archaeological data. कैसे? मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है पीरियड वाइज, एंड उस पीरियड में इन्होंने क्या फाइंड किया है. फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, आर्कियोलॉजिकल पीरियड एंड डेवलपमेंट देखते हैं. ऐसे 2 कॉलम वाला टेबल जैसे बना लीजिए. आर्कियोलॉजिकल पीरियड एंड कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, सी वी नो द पीरियड्स. कहां पर देखा है? क्रोनोलॉजी में देखा है, कल्चरल क्रोनोलॉजी में. वी नो, इवन दो वी डिड नॉट टच
स्पेशली ऑल दोस पैलियोलिथिक मेसोलिथिक कवर नहीं किया है, फिर भी वी नो दिस. फॉर एग्जाम्पल पैलियोलिथिक पीरियड जो है इट वॉज सैवेजरी काइंड ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब ऑल थ्री लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक पीरियड ही इज कीपिंग इट अंडर सैवेजरी टाइप. एंड यहाँ पर मेजरली मैन यूज्ड टू बी ए हंटर एंड गैदरर. सो यहाँ पर इनका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है हंटिंग एंड गैदरिंग तक की है. एंड लिमिटेडनेस वाज देयर विथ रेस्पेक्ट टू लिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. देन नेक्स्ट सेकेंड स्टेज जो है दैट इज सी अकॉर्डिंग टू हिम मीसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड. यहाँ पर मीसोलिथिक भी रख सकते हो बट ही सेज नियोलिथिक. से इसमें भी देखो पैलियोलिथिक सैवेजरी हंटर गैदर दिया है, मीसोलिथिक नियोलिथिक को दिया है. नियोलिथिक में ही हैज रिगार्डेड इट एज बारबारिक सोसाइटी. एंड बारबारिक सोसाइटी का मेन फीचर इन्होंने ऐसे बताया है कि लाइक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड हैपनिंग. लाइक क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. दिस इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी डेवलप हुआ है जिसकी वजह से फर्दर नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट एक और स्टेज पे जाएंगे. दिस इज कॉपर एज. ही कॉल्स दिस कॉपर एज एज हायर बार्बारिज्म. कॉपर एज एज हायर बार्बारिज्म. ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ है, मेटलर्जी, मेटल्स के बारे में इनको पता चला है कि हाउ टू यूज इट. एंड ही वॉज एबल टू लाइक मेक टूल्स एंड विद दैट बेटर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्लस इंडस्ट्रीज. अर्ली इंडस्ट्रीज जो है वो बिगिन हुआ है, अर्ली इंडस्ट्रीज, बट रूडिमेंट्री फॉर्म पे डेवलप हुआ है. देन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेज दैट इज ब्रॉन्ज एज, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के एज बराबर जो है ब्रॉन्ज एज. So this is where civilization started. So civilization started. यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और मल्टीफोल्ड हुआ है. So यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, पास्टोरलिज्म भी है, मेटलर्जी भी है, देन इंडस्ट्री भी है, ट्रेड भी है. इस तरीके से मल्टीट्यूड हुआ है जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज को और अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं. ठीक है. सो इस तरीके से ही स्टार्टेड गिविंग दैट archaeological periodic data to substantiate his point, and on the basis of it he says there is a universal evolution. ठीक है. इस तरीके से जैसे जैसे स्टेज डेवलप होते आया है the capacity to exploit the natural resources increased. ठीक है. so this is what his scheme of evolution is. please ये वाला कंप्लीट कर लीजिए. Are you done? Now if you are done with this we can go to the next person, next important contributor, that is कौन है next person? Julian Stewart. ठीक है. So please write. Next heading is Julian Stewart. See यहाँ पर एक ओवरऑल पिक्चर देता हूँ क्योंकि जूलियन स्टीवर्ट जो है ही इज ए मल्टी लीनियर एवोल्यूशनिस्ट. ठीक है. अगर सिंपल सेंस में बात करेंगे, सी यू कैन, एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस, एवोल्यूशनिज्म जो है इसका बेसिस कहाँ से देखा था हमने? इसका बेसिस जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ है. एंड देन इनिशियल केसेस में आ गया है आपका क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट. सो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट वर ऑफ this universal, unilineal and universal evolution दिया है. then another branch जो है this is neo evolutionist. ठीक है.
सॉरी न्यू एवोल्यूशनिस्ट, इनके अंदर देखो वी हैव मेनली टू स्कूल्स। एक स्कूल बात करता है यूनिवर्सल एवोल्यूशन का, जिस स्कूल का प्रोपोनेंट्स है अभी जो देखा था हमने, दैट इज लेस्ली वाइट, ठीक है, एंड अनदर पर्सन जीवी चिल्डे। दीज पर्सन्स दे वर गिविंग यूनिवर्सल एवोल्यूशन, एंड ये कहता है कि मतलब दे वर मोर इंटरेस्टेड नॉट इन ए पर्टिकुलर एवोल्यूशन रादर देन ओवरऑल एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है, ओवरऑल एवोल्यूशन, ठीक है, इस पे डिपेंडेंट करके दे वर गिविंग ए ओवरऑल जनरलाइज्ड आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। बट ऑन द अदर लाइन्स वी हैव दिस another new evolutionist who was giving multilinear, ठीक है, मल्टीलीनियर एवोल्यूशन। मल्टीलीनियर एवोल्यूशन का मेन प्रोपोनेंट जो है वो जूलियन स्टीवर्ड है। जूलियन स्टीवर्ड व्हाट ही सेज कि ही वाज एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। सी दिस इज वेयर वी आर इंटरेस्टेड नाउ, बाकी सब हमने कवर कर लिया, दिस इज जस्ट ओवरव्यू what we have studied so far. See, Julian Stewart जो है he was emphasizing on the role of environment. See, according to him environment जो है it is not a passive one, rather it is not passive, rather it is active in determining the culture. So many cultural aspects जो होता है they are determined by the environment as well. So thereby if you are going with the unilinear evolution or universal evolution, you are missing out the environmental role which varies, which is dynamic, which varies from place to place, and that also plays a significant role in the cultural development, ठीक है। So from here he stated that evolution जो है मतलब progressive change जो है that did not happen in the overall manner or universal manner, rather it has happened like multiple lines पे, there are so many lines on which this evolution has happened, ठीक है। So you cannot say one particular line, there are so many lines from primitive early societies to early simple cultures to different cultures में different lines पे मल्टी लीनियर मैनर पे ये एवोल्यूशन हुआ है, एंड ईच लाइन पे वी कैन सी द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ दिस environment or the local ecological setting. So this is what Julian Stewart said, and to validate his points he has given certain conclusions as well, certain points and conclusions as well. Overall picture समझ में आ गया? So let us look at the contributions of Julian Stewart, ठीक है। So please write Julian Stewart, इसमें लिख लीजिए he was a multilinear evolutionist who believes that there are many parallel lines of evolution, next point में लिख लीजिए, please write each one of this line has its own characteristics due to impact of environment. Each one of this line has its own characteristic due to impact of environment. Next point में लिख लीजिए according to him environment is not passive, rather an active and major contributor
an active and major contributor of cultural development, on the basis of it he gave the concept of, please write, on the basis of it he gave the concept of cultural ecology. Cultural ecology, we are connected, right? Next, see, cultural ecology का concept दिया है. See, sometimes we also refer this as इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी करके भी पढ़ते हैं हम. बाद में आपका 9.7 यूनिट जो है दिस टॉक्स अबाउट इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. वहां पर आई ट्राई टू लिंक इट वेयर डिफरेंट अडाप्टेशंस टेकन बाय द ह्यूमंस इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द हार्श क्लाइमेट्स. इस अडाप्टेशंस में जो है फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल अडाप्टेशंस के साथ साथ कल्चरल अडाप्टेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल्चरल अडाप्टेशंस जो है वो बहुत तेजी से होता है एंड दे आर लाइक easily adaptable, ठीक है, and that they are one of the reasons why the people are able to survive in the harsh climates. अगर cultural adaptations नहीं होता है तो it would take some severals of generations in order to have that biological adaptations, and biological adaptations are not going to be perfect for the changing environment. मतलब आज जो environment है कल वो बदल सकता है, तब you may not be able to change immediately your biological adaptation which has come लॉन्ग टाइम अगो एंड लॉन्ग जनरेशंस के बाद जो आपके अंदर डेवलप हुआ है वो इमीडिएटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट. चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है बहुत ही डायनेमिक है. इट कैन चेंज इवन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ डेज, फ्रैक्शन ऑफ आवर्स. बट बायोलॉजिकल वेरिएशन जो आ जाता है, अडाप्टेशन जो आ जाता है, वो इमीडिएटली चेंज नहीं होगा. इट विल टेक सम जनरेशंस टू ईदर अपीयर और डिसअपीयर. अगर ये कंडीशन है, सो व्हाट इज द सेवियर हियर? इट इज गोइंग टू बी द कल्चरल अडाप्टेशन. सो दैट इज वेयर दिस कल्चरल इकोलॉजी कम्स इनटू पिक्चर. इकोलॉजिकल सेटिंग के हिसाब से कल्चरल चेंजेस आते हैं, कल्चरल अडाप्टेशंस लेते हैं. यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे वी विल डिस्कस 9.7 यूनिट के साथ लिंक कर लीजिए. अब चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो इंटीग्रेट विथ 9.7 इंटीग्रेट ऐसे करके लिख लीजिए. सून वी विल बिगिन दैट एज वेल. सो वहां पर आई विल ट्राई टू इंटीग्रेट इट. यहाँ पर जैसे हार्श क्लाइमेट्स आता है, वी विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन हार्श क्लाइमेट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कल्चर इन अडाप्टिंग टू दीज कल्चरल क्लाइमेटिक जोन्स. जैसे हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर और सिमिलरली एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर है, वेरी लो टेम्परेचर्स, और हाई आल्टीट्यूड्स है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होता है. सो अंडर दीज केसेस व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल अडाप्टेशंस हैव बीन टेकन, ये सब चीज़ें देखेंगे हम. ठीक है, वी विल लुक एट सम ऑफ द केस स्टडीज एज वेल. सो अब देखो, इससे क्लियर कट है कि जो कल्चर है दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ecology जो है, environment or ecology, it is going to play very important role in the culture. If it is so, environment of two locations, any two locations, the environmental setup जो है it is never going to be same. मतलब all the aspects of environment, उसके अंदर जितने भी factors है, जैसे humidity है, pressure है, temperature है, and the atmospheric composition है, all of them they are not going to be same. So that means environment is ever changing plus, and it is so dynamic and so variable. If it is so, obviously culture is also going to be. ठीक है, so that is the reason why he says कि there is no this universal वाला जो है ये flaw है, you have to see that as a multilinear वाला. ठीक है, multilinear evolution के जैसे देखना पड़ेगा, क्योंकि various, अब देखो हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं, ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज टू 11 टाइप्स देखते हैं. इक्वेटोरियल क्लाइमेट, देन मानसूनल क्लाइमेट, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप, मेडिटेरियन टाइप, स्टेपी टाइप, इस तरीके से डिफरेंट देखते हैं. तो वहाँ पर हर टाइप ऑफ क्लाइमेट में द कैरेक्टरिस्टिक्स आर अलग अलग है. तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अलग अलग मैनर पे दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द कल्चर. सो इस तरीके से ही वॉज justifying this multilinear one. ठीक है, please write. I hope all the points are clear, examples and discussion is clear. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है.
प्लीज राइट, इसमें लिख लीजिए। इन्होंने कुछ वर्क्स भी किया है, सो उस बेसिस पे देखते हैं। अब कैन समबडी गिव मी कंफर्मेशन लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, बिकॉज आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग एंड गिविंग इट एंड आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। आई थिंक वी डिस्कस्ड दैट मल्टीलिनियरिटी ऑफ द एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ इनका बुक्स वगैरह जो है वो वाला बात करना होगा। प्लीज राइट, इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, one of the book is origin of agriculture, origin of agriculture. He describes various stages or various sequences of agriculture and each was motivated by ecological factors. Each was motivated by ecological factors. ठीक है, अब यहाँ पर इनको लिंक भी करना चाहते हो तो यू कैन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक कर सकते हो, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, सो यू कैन लिंक एंड से इट। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पर किया जाता है? इट इज नॉट डन एवरीवेयर, इट इज जनरली डन इन दोस एरियाज वेयर यू हैव थिक फॉरेस्ट, where you have like equatorial type of climate, hot and humid climate type जो होता है वहाँ पर this is most suitable. Other locations पे if you go with the shifting cultivation the effect is going to be disaster. ठीक है, and another thing देखो, shifting cultivation जहाँ पर कर रहा है that is justified on the basis of the environmental conditions there. ठीक है, and second thing modern agriculture जहाँ पर है, for example plain area पे, see शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया पे देखो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, वहां पर थिक फॉरेस्ट आर देयर, सो देयर इज अ गुड वेजिटेशन विच कैन बी कट डाउन, विच कैन बी बर्न एंड देयर कैन बी अ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ ऐश एंड नेचुरल रेनिंग इज ऑलवेज हैपनिंग। ऐसे नहीं कि सीजनल मैनर पे रेनफॉल होता है, बाकी जगह के जैसे नहीं है। ठीक है, सो देयर इज ए लाइक थ्रू आउट द ईयर देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सो इट इज सूटेबल देयर। But if you wanted to do the same shifting cultivation, let's say in the temperate zone, it is not going to work because rainfall time पे नहीं आएगा and there is no thick vegetation. ठीक है, so under those circumstances it is not possible to have. जब vegetation ही नहीं है तब how can you have the deposition of layer of ash? So it is not possible. Similarly, modern agriculture is much more suitable in the grasslands. टेम्परेट एंड नो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल में फिर भी वाटर की कमी पड़ जाता है, टेम्परेट लोकेशंस में वेयर देयर इज अ गुड अवेलेबिलिटी ऑफ द इरिगेशन देयर इट इज पॉसिबल। ठीक है, द सेम कैन नॉट बी डन इन द थिक फॉरेस्ट। इफ यू गो इनटू द थिक फॉरेस्ट एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग द मॉडर्न एग्रीकल्चर इट मे नॉट वर्क, अल्टीमेटली यू हैव टू डू द डिफॉरेस्टेशन एंड यू हैव टू अरेंज फॉर द इरिगेशन एंड देन ओनली देन यू कैन डू इट। ठीक है, इस तरीके से अब एग्जाम्पल्स में मतलब यू कैन नो कोरिलेट विथ इट। देन एक और जो है, हाँ एक और प्लीज अनदर बुक में लिख लीजिए, अनदर वर्क सोशोनियन इंडियंस। इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, सोशोनियन इंडियंस। ही हैज डेवलप्ड ए concept of relationship between culture and environment, relationship between culture and environment, कमा इसे में लिख लीजिए to him or for him social organization जैसे social institution है या social organization जो है, social organization is a reaction to environment। मतलब ये कहता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन आया ही एनवायरनमेंट की वजह से, एज ए रिएक्शन टू एनवायरनमेंट। ठीक है, इन ऑर्डर टू कोप अप विद दोस एनवायरमेंटल कंडीशंस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आया है। ठीक है, दैट इज व्हाट जुलियन स्टीवर्ट सेज। नाउ टेल मी, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है?
एग्जाम्पल्स एंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू से, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? इसमें कोई डाउट है? अभी तक 3 पर्सन्स को कवर किया हमने, तीनों का आइडियाज जो है उनका थीरीज कैसे है, आई थिंक ऑल ऑफ इट क्लियर। एक बार सिंपली समराइज कर लेता हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट जो है लेस्ली वाइट का देखा है, जो एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया है, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी पे, एंड एक लॉ भी दिया है, ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंटल लॉ, ठीक है। देन वी फोकस्ड ऑन सेकेंड पर्सन, दैट इज चिल्डे, एंड ही वॉज आर्कियोलॉजिस्ट, ही वॉज मोर फोकसिंग ऑन दैट बेस, इसका बेसिस जो है ability to exploit the natural resources. Of course you can link it with the technological development. So that is the reason why इन दोनों का मतलब छिल्डे का एंड वाइट का कंसेप्ट जो है साथ साथ चलता है। एंड ही हैज आल्सो इवन क्लासिफाइड दैट ऑन द आर्कियोलॉजिकल डाटा बेसिस पे। देन थर्ड पर्सन जो है दैट इज जूलियन स्टीवर्ट, जो मल्टीलीनियर एवोल्यूशनिज्म की बात किया है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम एनवायरनमेंट इज द प्राइमरी ड्राइवर, ठीक है, प्राइमरी फोर्स बिहाइंड दिस कल्चरल एवोल्यूशन, ठीक है। ये तीनों का कवर किया है। अब जो फोर्थ पर्सन जो है दैट इज शालिन एंड सर्विस, इसमें क्या है देखो, दीज टू पर्सन्स दे आर द स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स ऑफ, उस साइड से वाइट एंड इस साइड से जूलियन स्टीवर्ट, इन दोनों का है, मतलब इन दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसे बना हुआ है ये। अब जब टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स आया है, देर आपस में लाइक डाइवर्जिंग, सो ऑब्वियसली जो बीच में है वो फंस जाएगा, एंड दीज पीपल दे स्टार्टेड लाइक लुकिंग हाउ टू कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स, व्हाट आर दी मतलब शॉर्टकमिंग्स ऑफ द यूनिवर्सल वन एंड द पर्टिकुलर वन आर मल्टीसेंट्रिक वन, मल्टीलीनियर वन। सो इसलिए ये दोनों डेवलप किया है एक थ्योरी, जहां पर ही केम अप विद दी टू कॉन्सेप्ट्स। एक कॉन्सेप्ट कहता है कि एक देयर इज लाइक यूनिवर्सल एवोल्यूशन इज देयर, दैट इज जनरल एवोल्यूशन इज देयर विच टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल लेवल, एंड दूसरा वाला जो है एवोल्यूशन में मतलब मैक्रो एंड माइक्रो बेसिस पे बता दिया है। माइक्रो जो है दैट इज स्पेसिफिक वाला, स्पेसिफिक वाला इज ड्यू टू द लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस, देयर बाय सेटिस्फाइंग जूलियन स्टीवर्ट, एंड दूसरा वाला जो है मैक्रो दैट इज जनरल एवोल्यूशन, दैट इज ड्यू टू मतलब यूनिवर्सल एवोल्यूशन को वहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट इज ड्यू टू एनर्जी, टेक्नोलॉजी, जो भी पॉइंट्स बहुत किया है वो लेकर आया है, देयर बाय दोनों को बैलेंस करके पॉइंट दिया है। गॉट द पॉइंट? सो नेक्स्ट सब हेडिंग लिख लीजिए, शालिन एंड सर्विस, शालिन एंड सर्विस। प्लीज राइट, they were colleagues and students of both white and Julian Stewart. They tried to fill the gap, next point में लिख लीजिए, they tried to fill the gap, और fill the bridge भी लिख सकते हैं या act as a bridge भी, fill the gap between White and Stewart they proposed two variants of evolutionism। क्या क्या है? एक होता है स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर 1, स्पेसिफिक नंबर 2 जनरल एवोल्यूशन। स्पेसिफिक एवोल्यूशन प्लीज इस तरीके से लिख लीजिए, स्पेसिफिक एवोल्यूशन एंड जनरल एवोल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए, टू वेरिएंट्स। अब इसमें देखो स्पेसिफिक एवोल्यूशन और सब हेडिंग लिख लीजिए स्पेसिफिक एवोल्यूशन। सो कैसे ये ब्रिज कर रहा है स्पेसिफिक एवोल्यूशन,
से अंडर विच दे से स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर कल्चर के लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज इसमें लिख लीजिए। ये कहता है कि टू वेरिएंट्स और टू फेसेस ऑफ द एवोल्यूशन इज देयर। एक है कि स्पेसिफिक जो है इट इज टू सेटिस्फाई दैट एनवायरमेंटल कंडीशंस, जूलियन स्टीवर्ट का पॉइंट। देन जनरल जो आता है दैट इज फॉर लेस्ली वाइट एंड चिल्डे, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल वाला। इसमें लिख लीजिए स्पेसिफिक वाला में अकॉर्डिंग टू देम इट लीड्स टू डाइवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू देम इट लीड्स टू diversity through modification under the influence of environment, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर वो कल्चरल रिलेटिविज्म कॉन्सेप्ट के साथ भी लिंक कर सकते हैं, लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म विच टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक कल्चर का इकोलॉजिकल सेटअप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस पर बात करो। लाइक यहाँ पर आप एरो करके लिख सकते हो लिंक्स टू कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट जो है दैट इज जनरल एवोल्यूशन, यहाँ पर एनवायरनमेंट को हाईलाइट कर लो एंड डाइवर्सिटी मॉडिफिकेशन को हाईलाइट कर लो। देन जनरल एवोल्यूशन, इसमें देखो सी इट इज व्हाट जनरल प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ से general development from simple to higher forms, because of what, because of level of technology, the harnessing of energy, इन सारे reasons के वजह से जो general वाला है, please write it is evolution from simple to complex due to increase in energy harnessed or technological development, ठीक है। so this is what the concept of white and this, मतलब यहाँ पर it links with your universal evolution, ठीक है, यूनिवर्सल एवोल्यूशन से। अगर सिंपल सेंस में बात करेंगे, लेट मी गिव यू द ओवरऑल व्यू। सी मैक्रो एंड माइक्रो स्केल पे बात करते हैं। व्हाट शालिन एंड सर्विस डिड इज, इफ यू आर टेकिंग दिस entire thing as the evolution, this entire Venn diagram में जो सर्किल, बड़ा सर्किल है, this is general evolution or universal evolution। अब देखो, ideally it should be the case, but due to the role of environment, जैसे environment का रोल आने लगेगा तो क्या होता है, modifications happen। जैसे इसके अंदर modification आएगा and it is going to become a separate unit। यहाँ पर एक और, मतलब जितना भी environments है, ठीक है। See why I am not completely drawing every circle inside this, because it is not possible that environment जो है that is going to lead completely ideal रहेगा या completely same रहेगा, ऐसे नहीं होगा। So as a result of it, what will happen? This will lead to formation of like different यहाँ पर environment 1, environment 2, environment 3, मतलब cultural setup 3, cultural setup 4,
इस तरीके से जैसे जैसे कल्चरल सेटअप्स बदलता है तो उसके वजह से क्या हो रहा है, दिस इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स, वेरियस कल्चरल पॉकेट्स बन रहे हैं, ठीक है। एंड ईच ऑफ देम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो इसका एनवायरमेंटल कंडीशन, इसका एनवायरमेंटल कंडीशन, इस तरीके से कल्चरल, मतलब सेम इस तरीके से ये मतलब ट्रांजिशन हुआ है। अब देखो यहाँ पर ईच ऑफ दिस दे आर डिफरेंट, मतलब इफ यू लुक फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू बिकम ए स्पेसिफिक वन, सेपरेट वन, सेपरेट वन, ठीक है, ये सेपरेट, ये सेपरेट, ये सेपरेट, बट ओवरऑल लेकर देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द एनर्जी, विथ रेस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यू मे फाइंड दिस एंटायर सर्किल, बड़ा सर्किल वो वाला यहाँ पर दिखेगा। सो दिस एंटायर सर्किल वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज यूनिवर्सल, एंड ये जो इंडिविजुअल वाला है दैट इज स्पेसिफिक, इस तरीके से दिया है, ठीक है। गॉट द पॉइंट, व्हाट दे हैव सजेस्टेड, व्हाट दे हैव जस्टिफाइड दिस, ठीक है। सो प्लीज गिव मी कंफर्मेशन नाउ। सो यहां से हम ये बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट एज एस ई इंस्टेड ऑफ ई। एस सी स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक कल्चर। अब देखो स्पेसिफिक कल्चर, स्पेसिफिक कल्चर, स्पेसिफिक कल्चर, ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक कल्चर्स हैं। जनरली क्या है, ओके लेट मी ड्रॉ इट फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, जैसे नीचे से लिखूंगा बॉटम स्ट्रेटा से, यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। यूनिवर्सल एवोल्यूशन है, जनरली यूनिवर्सल एवोल्यूशन है। यूनिवर्सल एवोल्यूशन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स एक्ट किया है डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसके वजह से स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक कल्चर, स्पेसिफिक एवोल्यूशन 1, स्पेसिफिक एवोल्यूशन 2, स्पेसिफिक एवोल्यूशन 4 इस तरीके से आया है, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम दे लेड टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन कल्चर्स, ठीक है। अगर सिंपल से सेंस में बात करना है तो सी दिस रेडिएट्स टू दिस, सिंपल। यहां पर सी द सेम इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट हियर, ठीक है, सेम सिंपल यूनिवर्सल एवोल्यूशन, बट बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द एनवायरनमेंट ईच ऑफ देम हैज डिवाइडेड। सो अगर ऐसे डिफरेंटली देखना है तो ये माइक्रो स्केलिंग पे रख सकते हो आप इन सब यूनिट्स को, एंड इसको मैक्रो स्केल पे रख सकते हो। दिस इज व्हाट द शालीन एंड सर्विस वर्क, ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ हमने सब लोग को कवर कर लिया है, राइट, रेंजिंग फ्रॉम योर मतलब ऑल 5 पीपल, 4 पीपल, 4 ग्रुप्स जो है उनके बारे में कवर किया है। अब जनरल क्रिटिसिज्म जो है उसके बारे में डिस्कस करना है, एंड कंक्लूजन, ठीक है। सो प्लीज नेक्स्ट हेडिंग रख लीजिए